हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है ऑन द चैप्टर प्लांट किंगडम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द ग्रुप्स दैट आर क्लासिफाइड अंडर द किंगडम प्लांटी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑन टू ग्रुप्स, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। तो शुरू करें। किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हम इंक्लूड कर सकते हैं? या इफ आई आस्क यू व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ द ग्रुप या द ऑर्गेनिजम्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, सो व्हाट वुड बी इट? यूकैरियोट, क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस है तो फोटोसिंथेटिक होगा, राइट? ऑटोट्रॉफिक, सेल्यूलोसिक सेल वॉल, and immotile plant body. Mostly, right? So these are some of the general features of the organisms that are included in this group. इसके अलावा one thing very important that we get to see in plants is alternation of haploid and diploid phases, जिसको कि क्या कहा जाता है? It is called alternation of generation, right? So what are the two generations? One will be gametophyte and the other sporophyte. So when I say plant kingdom, yeah, you say plant kingdom में what are the groups that are included today? Algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and last but certainly not the least is angiosperms. Out of this, these three are non-flowering, right? These two are seed bearing. और अगर वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो दीज थ्री आर द वंस विथ वेस्कुलर टिश्यू, राइट? So now we know that these are the 1, 2, 3, 4, 5 groups that are included under plant kingdom. But हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले plant kingdom में in addition to this there were other groups involved and they were Monera. Yeah, you can say the bacteria were also included under plantae, fungi and some protists. ओके, तो प्लांटी में अगर इतने सारे से थे 5, 6, 7, 8 इतने सारे से ग्रुप्स थे, तो वहां से ये कैसे हुआ? हाउ डिड वी कम टू दीज 5 ग्रुप्स ओनली? देयर इज वेयर अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री कम्स। और इस हिस्ट्री को समझने के लिए वी हैव टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. Angiosperms at the very beginning, when classified by Linnaeus, it was what? जो सिस्टम उन्होंने दिया था, it was artificial classification. और यहां पे हमें काफी सारे से एनोमैलीज धीरे धीरे नजर आने लगे. And what are the anomalies? We have already done in the previous chapters.
नाउ सवाल ये उठता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? What is artificial classification? The classification that is based grossly on morphological characters, right? अब morphological characters में क्या क्या आता है? The vegetative characters as well as the sexual characters. तो ये दोनों को इंक्लूड किया गया था एंड दे बोथ वेर गिवन इक्वल वेटेज अंडर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. नाउ सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोले तो क्या? द एंटायर फ्लावर. ओके, नाउ इन मेनी बुक्स खाली एंड्रोएशियम दिया हुआ है, बट एक्चुअली व्हेन यू से सेक्सुअल कैरेक्टर पूरा का पूरा फूल इज कंसिडर्ड. ओके, तो इससे धीरे धीरे एनोमैलीज सामने आने लगे एंड बिकॉज ऑफ दोज एनोमैलीज दूसरे दूसरे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन केम इनटू बीइंग. आर्टिफिशियल के अपोजिट या इन कंट्रास्ट टू आर्टिफिशियल, व्हाट वाज द क्लासिफिकेशन वी गॉट? Another system of classification that we got was natural system of classification. Clear है बच्चों? What is natural system of classification? In addition to the morphological characters, जो कि artificial system में है. Natural affinities between the groups internal structure. Now internal structure means what? एक तो एनाटॉमी हो जाएगा, दूसरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. Ultra structure of the cell means what? Cytology, right? The cell structure, its chromosomes and everything. फिर embryology and the phytochemistry. Okay, इन सारे कैरेक्टर्स को taken into consideration and we got a natural system of classification. And one such system of classification is given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. Okay, तो इसी वजह से जैसे जैसे डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते गए, many members of the algae, some movable protists and all were taken out of the plant kingdom, right? ऐसे ही कुछ और system of classification देख लें and some more taxonomies which are there. So one such taxonomy is cytotaxonomy. Cyto means what? Cell. तो यहां पे सेल स्ट्रक्चर को देखा जाता है. Now cell structure बोले तो what specifically? The chromosome, number, its structure and behavior. Okay, a lot of weightage is given to this. Then we have chemotaxonomy. Chemotaxonomy में the chemical constituent of the plants. Now, when we say the chemical constituents of the plants, we don't mean कि the common chemicals like starch and cellulose and all. ये तो हर जगह होता है. Then what kind of chemicals are paid attention to? Things like alkaloids, जो specifically कुछ group में होता है, resins, etc. Okay? Then we have phylogenetic classification. Phylogenetic classification में क्या होता है? It is based on evolutionary relationship.
Now, what is the core belief of this? The core belief of this system of classification is कि all organisms of one taxa या belonging to one taxa have common ancestry. यानी कोई एक टैक्सा के अंडर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनके परदादा परदादी सब कॉमन है. ओके इसका डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज या चैलेंज? नो, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ फॉसिल, सॉरी, if you are talking of evolution, so you have to depend on fossil records, but unfortunately fossil records do not always exist for all organisms, right? So in that case, what is the solution? Depend या rely on other branches of taxonomy for what? For resolving issues. Clear है? Now, last one is numerical taxonomy, very advanced form of taxonomy. इसमें क्या होता है? You take as many characters as you can, no limits. Okay, आप उनको कुछ numbers or codes दीजिए and feed it to the computer, and your computer will do the rest of the job for you. It will give equal weightage to all the characters. It will do the classification for you. आपका काम होगा खाली observable characters को लीजिए, उनको टैग कीजिए या कोड्स नंबर दीजिए, सीक्वेंस कीजिए और कंप्यूटर को फीड कर दीजिए. दिस इज अ वेरी एडवांस्ड फॉर्म, राइट? तो स्टूडेंट्स, दैट वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस दैट इवॉल्व्ड. एंड व्हाई डिड दे इवॉल्व? बिकॉज जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन था, द आर्टिफिशियल वन, स्लोली मेनी एनोमलीज वेर फाउंड विथ देम. इसीलिए नाउ दैट द प्लांट किंगडम दैट वी हैव, उसमें से फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोनेरा यानी द बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट्स, जो पहले प्लांट में क्लासिफाई होता था अब उन्हें प्रोटिस्टा में डाल दिया गया है. दे हैव बीन टेकन आउट. तो अब प्लांट किंगडम में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं? लेट्स सी. प्लांटी किंगडम, इट कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन फ्लावरिंग. प्लांटी किंगडम को हम नॉन फ्लावरिंग, जिसे कि क्रिप्टोगैम कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स, एंड फ्लावरिंग. फ्लावरिंग इज फेनेरोगैम्स में डिवाइड कर सकते हैं. नॉन फ्लावरिंग में क्या क्या आता है? फर्स्ट इज एल्गी, सिंपल, हेलॉइड, हैप्लॉइड, primarily aquatic plants, right? Two is your bryophytes, the amphibians of plant kingdom, right? Third is pteridophyte. These are the first terrestrial plant with vascular bundle. ये दोनों में वेस्कुलर बंडल नहीं है या वेस्कुलर टिश्यू नहीं है. Now let us come towards the flowering plants. First is the
gymnosperms. Gymno means what? Naked. And sperm means the seed. So gymnosperms are the category of the plants where the seed lies by itself. उसके बाहर कोई ovarian या कोई fruit like protective covering नहीं है. Okay? And the final one that we have under flowering plants is angiosperms. Most advanced, most evolved flowering plants. क्लियर है बच्चों? समझ में आया? अब आगे हम आज के इस वीडियो में एल्गी और ब्रायोफाइट्स को देखते हैं इन डिटेल्स. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एल्गी. So let us have a look at the general features of algae. So what are algae? Chlorophyllous, autotrophic, simple, plants. Okay, chlorophyllous, autotrophic, simple thalloid plants, body haploid. And it shows what? Haplontic life cycle. Haplontic life cycle दिखाता है तो इसका zygote, it shows zygotic meiosis, यानी यहां meiosis zygote पे होता है. डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ समझते जाएंगे. ओके, तो लेट अस बिगिन विद इट्स हैबिटेट. ये कहां पाया जाता है? हैबिटेट में प्राइमरीली इट इज एक्वेटिक, राइट? नाउ एक्वेटिक में यू विल फाइंड फ्रेश वाटर, मराइन, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश या सॉल्टी वाटर, right? फिर you will find them, and most of the algae, maximum belong to this type of habitat. इसके अलावा भी you can find them in damp, moist places such as soil, rocks, tree trunk. Okay? On animals, जिसे कि हम एपिजोइक कह सकते हैं. एपी मतलब क्या? किसी चीज के ऊपर होना. एंड जोइक रेफर्स टू जू या द एनिमल्स. खूब सारे से एग्जाम्पल्स हैं यहां. फर्स्ट इज ऑन फर ऑफ स्लॉथ, बेयर. सेकेंड ऑन हाइड्रा. थर्ड on shells of many mollusks. Okay. Fourth is, you can say, underside या underbelly of blue whale. ठीक है. Besides this, they also show symbiosis. Symbiosis कहां देखने को मिलता है? In lichens. वहां they are associated with fungi. And there are very few parasitic species. Example is Cephalosaurus. हो गया? अब देखते हैं इनके फॉर्म्स, द फॉर्म्स ऑफ द प्लांट बॉडी. तो एक तरफ हम यूनिसेल्यूलर ले लेते हैं. ओके, द प्लांट बॉडीज शोज वेरिएशंस फ्रॉम यूनिसेल्यूलर टू मल्टीसेल्यूलर, और मल्टीसेल्यूलर में भी काफी सारे से वेरिएशंस होते हैं. तो एक एक करके हम देख लेते हैं. यूनिसेल्यूलर में एग्जाम्पल इज कारा एंड क्लेमाइडोमोनास. कारा इज नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल है तो फ्लैजेला नहीं होगा. क्लेमाइडोमोनास इज मोटाइल. फिर दूसरी तरफ हम आते हैं मल्टी सेल्यूलर पे.
मल्टी सेल्यूलर पे हमें कितने सारे से फॉर्म्स देख सकते हैं। पहला, वी कैन सी फिलामेंटस प्लांट बॉडी फॉर्म। एग्जाम्पल, यूलोट्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। क्लियर? दूसरा है शीट लाइक, यानी एक पेपर या लैमिना जैसा। यू कैन सी इट इन द एल्गी अल्वा। ओके। फिर लार्ज प्लांट बॉडी। Now we are talking of the marine algae, okay, which are referred to as kelps. Okay, kelps उन marine algae को collectively कहा जाता है. Most of them belong to the brown algae and they have huge plant bodies. They may reach up to heights from anywhere between 60 to 100 meters. Okay, and their body is differentiated into a lamina, frond, stipe, and holdfast. ओके। नाउ यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो, जो भी है स्पीशीज, वो अपना अलग अलग रहते हैं। बिसाइड्स दीज फॉर्म you will also find colonial form. Colonial form means what? Small cells, yeah, small living organisms, small algae. They come together and they live in a colony together. Example is Volvox. Now Volvox में छोटे छोटे Volvox जो कि खुद यूनिसेल्यूलर है, ओके, दे कम एंड दे एनक्लोज देमसेल्फ इन अ जेलेटिनस शीट। ठीक है, तो बच्चों देख लिया आपने कि एल्गी, जिससे कि हम बहुत ही एक सिंपल सा कुछ समझ के चल रहे थे, दे आर नॉट एज सिंपल एज यू थिंक। Just look at the variety that they show when it comes to their plant body forms, right? Now let us look into their pigments. Pigments में chlorophyll A is universal to all algae. Okay. Besides this, chlorophyll B, C, carotenoids, xanthophylls are some of the other pigments that we get to see in algae. ठीक है? So students, now a very important thing which is the reproduction in algae. अब algae में तीन तरह के reproduction ही हमें देखने को मिलते हैं. What are they? Vegetative, asexual and sexual, right? Vegetative में क्या है? It vegetatively reproduces by the process of fragmentation. Fragmentation मतलब क्या? थैलस का टूटना और टूटे हुए टुकड़ों से नए प्लांट्स को जन्म देना. Then asexual. Now asexual occurs by different types of asexual spores. Okay, commonest is zoospore. अब नाम पे ही है zoospore, तो zoospore मतलब क्या? zoo का मतलब है एनिमल लाइक, राइट? तो ये मोटाइल होना ही होना है. तो these are motile spores, और मोटाइल है तो इनमें फ्लैजेला भी होगा. Other than this, some of the other types are aplanospores. Aplanospores जो है, they are non-motile. ठीक है? फिर ऑटोस्पोर्स, hypnospores, akinets. Done? Now sexual reproduction. Sexual reproduction, obviously the only way is fusion of what? Gametes. But depending on the type of the gametes, we can have three types of sexual reproduction in algae. Number one, isogamous. Isogamous नाम पे ही है, morphologically similar gametes.
मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब साइज शेप इक्वल, राइट। एग्जाम्पल्स इनके ओके इनके एग्जाम्पल्स दो कैटेगरी के हो सकते हैं। लेट मी राइट इट फॉर यू। गैमेट्स नॉन मोटाइल, यानी ये पैसिवली फ्लो करेंगे। वी गेट टू सी इट इन स्पाइरोगाइरा, राइट। फिर gametes are motile. Here both the gametes have flagella. We can see it in Eulotrix and Chlamydomonas. सेकंड क्या है? Anisogamous. Anisogamous मतलब क्या? They are not equal. They are not morphologically the same. कहाँ देखने को मिलता है? Eudorina. Okay. Third and an advanced one is oogamous. oogamous में क्या होता है? The female gamete is fixed. ये अपने जगह से नहीं हिलता. Male gamete swims up to या comes up to the female gamete. Now this male gamete, ये जो है it can either be motile. कहाँ देखने को मिलता है ये? वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस में. ये क्लोरोफाइसी है, ये फियोफाइसी है. एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इन मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी. नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस या ऊपर ऊपर जब स्टूडेंट्स देखते हैं हमेशा oogamous को फिक्स्ड फीमेल गैमेट एंड मेल को मोटाइल गैमेट बोल के चला देते हैं. बट दैट इज नॉट द एंटायर स्टोरी. मैं आपको बिल्कुल इन डेप्थ और फाइनर डिफरेंसेस दे रही हूं. ओके कि oogamous में इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा द मेल गैमेट इज मोटाइल और दे आर फ्लैजेलेटेड. इफ दे डू नॉट हैव फ्लैजेला दे आर नॉन मोटाइल एंड वी गेट टू सी इन रोडोफाइसी. क्लियर अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी. अब बचता है उनका इंपॉर्टेंस. तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक तरफ है इकोलॉजिकल. नियरली 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ इज फिक्स्ड बाय एल्गी. हाउ? बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक. तो एल्गी दिखने में तो छोटा लगता है, राइट? छोटा सा ग्रीन सा, बट लुक एट देयर इंपॉर्टेंस, एट देयर कंट्रीब्यूशन. Second contribution is they increase the amount of dissolved oxygen in their immediate environment. Because they are photosynthetic and especially the ones which are in water and most of them are aquatic. तो जैसे photosynthesize करते हैं, oxygen is released and it increases the amount of dissolved oxygen in the water. Third, in oceans they are the primary producers. So being primary producers, they form the base for many food chains in oceans, right? They become the food for many animals there. अब आते हैं इकोनॉमिकल में. इकोनॉमिकल में they are source of food. About 70 marine algal species are edible. उसमें से 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर लैमिनारिया, सार्गैसम. ये दोनों ब्राउन एल्गी है, इसीलिए ब्रैकेट पे मैंने BA लिख दिया है. फिर है पोरफायरा, दिस इज रेड एल्गी. देन they are source of important food supplements. Example, chlorella and spirulina. They are very rich in nutrients, that is why used as food supplement not just by humans on earth, even by space travelers. Okay. Laminaria is an important source of iodine. Besides this, in addition to this, the last point is algae are important source of hydrocolloids. Now what are hydrocolloids?
हाइड्रोकोलाइड्स आर द कंपाउंड विच हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और 3 तरीके के यहाँ हाइड्रोकोलाइड्स हमें मिलते हैं। एल्जीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, कैराजीन फ्रॉम रेड एल्गी, agar from Gracilaria and Gelidinium. Now Gracilaria and Gelidinium are also red algae. लेकिन agar and carrageen में there is difference in the constituents, there is difference in the structure and how we use them. That is why they have different names. Okay, and of course source is also different. So that was all about the general account of algae. अब algae के 3 groups है, chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae, the green, brown and red algae. So let us now look at each group. Okay. Okay students, so the first group is chlorophyceae, the green algae. तो क्या है green algae? Let us have a look. Habitat इनका, they are fresh water, ponds, lake, streams, या they are found in brackish water and salt water as well. Besides this, some form are terrestrial, यानी moist surfaces, moist soil, stone, you know, near water bodies, जहाँ पानी गीला हो, sorry, जहाँ soil गीला होता है, there you will find algae. Their pigments. Now, primary pigment is chlorophyll A, and this is true for all the 3 groups, chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. इसके अलावा the secondary pigments जो है that keeps on changing. तो यहाँ पे प्राइमरी है क्लोरोफिल ए, सेकेंडरी वी कैन से क्लोरोफिल बी. नाउ क्लोरोफिल, नाउ जो पिगमेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट्स. एंड डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट्स क्या है ये अभी हम समझेंगे. देयर सेल स्ट्रक्चर, उनका सेल स्ट्रक्चर, उनका सेल वॉल जो है, इट इज 2 लेयर्ड. द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. It is made up of cellulose and the outer is pectose. They are flagellated, not all, but if they are flagellated, the number of flagella 2 to 8 होगा, equal in length and apical. So if we take the example of, say for example, Chlamydomonas, तो Chlamydomonas का shape कुछ ऐसा है. Apical, so this is the apex, यहाँ से बिल्कुल equal length of flagella. मेरा उतना तो इक्वल नहीं हुआ. Anyways, here you have 2 in number. So the maximum a chlorophyceae can have is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clear? Now, the stored food is starch. ये अपना खाना स्टोर कैसे करते हैं? They have a special structure for that. So this is the cell. दिस इज द प्लास्टिड या द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये एक स्टोरेज बॉडी होता है विच इज कॉल्ड द पायरेनॉइड. और पायरेनॉइड में क्या क्या स्टोर होता है? स्टार्च एंड प्रोटीन. सो यू कैन से सी अ बड़ा सा सेल, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक छोटा सा सेल, फिर है पायरेनॉइड द स्टोरेज बॉडी, एस एंड पी इन ब्रैकेट. क्लियर है? बिसाइड्स दिस ये फैट भी रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इन द साइटोप्लाज्म. तो फूड स्टार्च भी है प्लस फैट ड्रॉपलेट्स. ओके. नाउ क्लोरोप्लास्ट शेप, दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लोरोफाइसी. इनके क्लोरोप्लास्ट वेरियस शेप्स के होते हैं. कप शेप्ड एग्जाम्पल इज क्लामाइडोमोनस. नाउ क्लामाइडोमोनस आप जब भी देखेंगे, wherever you see, you have to notice कि इनमें एक ही बड़ा सा यू कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें एक पायरेनॉइड होता है. क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. फिर स्पाइरल या रिबन लाइक, वी कैन सी इट इन स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा कैसा है? बॉडी फॉर्म इज फिलामेंटस. तो ये उनके रेक्टेंगुलर सेल्स हो गए. ओके. क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो ऐसा ऐसा अंदर से होगा. ओके, लाइक अ रिबन. इट कैन बी गर्डल शेप या स्क्वायरिश टाइप. वो हमें यूलोट्रिक्स में देखने को मिलता है. सो स्पाइरोगायरा एंड यूलोट्रिक्स काफी सिमिलर है, लेकिन जो डिफरेंसेस होते हैं
मैं दिखा देती हूँ। ये यूलोट्रिक्स है, दिस इज स्पाइरोगाइरा, दिस इज यूलोट्रिक्स। इनका सेल स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वेरिश टाइप होता है, इट इज नॉट लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर। और उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज काइंड ऑफ स्क्वेरिश। ओके, गर्डल लाइक मतलब, गर्डल मतलब क्या, यूं एक जैसे आयरन रॉड होता है ना, वो पिलर के चारों पास उसी टाइप का, और फिर बीच में पायरेनॉइड। ठीक है, सो दीज आर द डिसिमिलैरिटीज दैट यू कैन सी। अदर देन दिस डिस्कॉइड शेप है एंड प्लेट लाइक या रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट शेप्स होते हैं। नाउ देयर बॉडी फॉर्म्स, their body forms can be unicellular, colonial या filamentous. Unicellular के examples है Chlamydomonas and Chlorella. Chlorella is non-motile, Chlamydomonas is motile. Volvox is colonial, filamentous is Spirogyra and Eulotrix. Okay, हम यहाँ पास पास इन्हें रख रहे हैं। Key members Chlamydomonas, Chlorella, Volvox, Eulotrix, Spira. Cara, it is also called stonewort and it is branched. Cara का structure ऐसा filamentous होता है, एक main stem like, and it shows branch like structures in a whole. Very beautiful, okay? यूं उनका structure होता है। So students, मैं पूरा एल्गी के 3 ग्रुप समझा दूं, फिर आपके बुक में जो डायग्राम्स है मैं उन्हें लेके समझाऊंगी, ओके? लेकिन पहले हम इनका पॉइंट्स देख लेते हैं। Now these are the organisms at a glance. Chlamydomonas, Chlorella, Volvox, Spirogyra, Eulotrix and Cara. These two unicellular, Volvox colonial हो गए, हमने ऊपर लिखा है। ये दोनों ही filamentous है, इसका सेल जो है वो रेक्टेंगुलर होता है, इसका स्क्वेरिश। क्लोरोप्लास्ट रिबन लाइक, इसका गर्डल लाइक। इनके गैमेट्स नॉन मोटाइल, इनके गैमेट्स मोटाइल। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप हैंडी नोट बना के लिख के रखें, सेव करके रखें अपने फोन पे या एनी प्लेस यू फाइंड इट हैंडी, बीच बीच में इसको रिवाइज करना विल बिकम वेरी इजी। एंड कारा शोज अ ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर लाइक दिस। क्लियर? अब आते हैं इनके रिप्रोडक्शन पे। सो एसेक्सुअल में वेजिटेटिव इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स से होता है। सेक्सुअल में वी कैन सी द 3 कैटेगरीज, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous. आइसोगैमस के एग्जांपल्स यूलोट्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, यूलोट्रिक्स मोटाइल, स्पाइरोगाइरा नॉन मोटाइल। मैं अब तक शायद ये 3 से 4 बार रिपीट कर चुकी हूँ। रिपीट करने की आदत है, बट जितना आप रिपीट करेंगे उतना इट इज गुड फॉर यू, ओके? Anisogamous is Eudorina, oogamous is Volvox. Now, अगर आप evolutionary trend देखें तो this is the trend from isogamous to anisogamous to oogamous. It is evolving. And here in the boxes there is a small handy note, few lines about some of the important organisms. Okay, you may take a screenshot of this. And this one, नीट क्विक रिकॉल, इसमें इस ग्रुप के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके लिए बॉक्स कर दिया गया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट ग्रुप विच इज फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, हैबिटेट इनका प्राइमरीली मैराइन या ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर में होते हैं। There are few freshwater species and that is rare. Now coming to their pigments, chlorophyll A and C. उसके अलावा accessory pigments में xanthophylls and carotenoids है। Now xanthophylls and carotenoids, this is the name given not to one pigment but collectively to many types of pigments. तो xanthophylls में the common and the dominating type is fucoxanthin. Okay? और फियोफाइसी है तो ब्राउन एल्गी, बट इट्स कलर में वेरी फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन ऑलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो
to brown. And it is the amount of fucoxanthin that decides this color. ठीक है बच्चों? फिर इनका सेल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, इनर वाला हमेशा सेल्यूलोज होता है, आउटर इज जेलेटिनस एल्जिन एंड दैट इज व्हाई इट इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड, इसीलिए यहां से हाइड्रोकोलॉइड एल्जिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर? इनका स्टोर्ड फूड होता है लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नाउ कमिंग टू देयर फ्लैजेला। अगर फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, अगर फ्लैजिलेटेड एल्गी है या अगर इनके स्पोर्स फ्लैजिलेटेड है, so the number will always be 2, unequal and lateral. This means what? अगर ये उनका सेल है तो lateral यानी sideways एक फ्लैजिला निकलेगा, दूसरा ऐसा unequal in length. Clear? Now their body parts. Now their पहले एक्चुअली बॉडी फॉर्म्स को बोलती हूँ। ओके, नाउ देयर बॉडी फॉर्म्स कैन बी सिंपल फिलामेंटस इन एक्टोकार्पस, यूं सिंपल सा होगा। ओके, नथिंग मच देयर, या दे कैन बी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड वेरी लार्ज। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड लार्ज वाले में हमें बॉडी पार्ट्स देखने को मिलते हैं। व्हाट आर द बॉडी पार्ट्स? ये फ्रॉन्ड हो गया जो पत्ते जैसा या लैमिना जैसा होता है, द टॉप मोस्ट पार्ट, एंड दिस इज द फोटोसिंथेटिक पार्ट। दिस इज द होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट नाम पे ही है, इसने होल्ड किया हुआ है एल्गी को, किसके साथ? सबस्ट्रेटम के साथ। और बीच में जो ये स्टॉक जैसा है, डंडे जैसा, दैट इज द स्टाइल। इट कनेक्ट्स द फ्रॉन्ट टू द होल्ड फास्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज सम ऑफ द फ्रॉन्ट्स दे शो अ midrib. Okay, see here it is written, some have midrib and air bladders. और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है फ्यूकस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके की मेंबर्स के एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टोकार्पस सिंपल ब्रांच है, डिक्टियोटा डाइकोटोमस ब्रांचिंग, I'll show you in the diagram, don't worry. Laminaria, fucus is very important because fucus में तीनों स्ट्रक्चर तो है ही, the hold fast, stipe and frond. In addition, midrib and air bladder दिखाता है। Air bladder, why? It helps them in being bowen. bowen से देता है। Okay? फिर है sargassum. Now their reproduction. Vegetative में fragmentation आ जाता है और एसेक्सुअल में बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। नाउ स्पोर्स इनका जो होता है, दे आर पेयर शेप्ड या पायरिफॉर्म, यानी कुछ ऐसा गोल गोल सा, स्फेरिकल ओवल नहीं होता। 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजेला, यानी एक ऐसा हो गया तो दूसरा ऐसा। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस तीनों ही दिखाते हैं। आइसोगैमस का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, एनाइसोगैमस का डिक्टियोटा एंड उगैमस का फ्यूकस। ओके, now in this box again we have some quick points, we have some points for your need, you can take a screenshot of this. Okay, अब हम द लास्ट ग्रुप देखते हैं which is Rhodophyceae, and now the next group which is Rhodophyceae। और आपके लिए स्टूडेंट्स मैं हर एल्गी को उसी कलर में चार्ट बनाई हूं। ओके, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। ओके, रोडोफाइसी द रेड एल्गी। हैबिटेट से शुरू करते हैं। मोस्टली मैराइन। नाउ मोस्टली मैराइन में दे आर फाउंड इन वार्मर एरियाज, वार्मर कोस्टल एरियाज। ओके, कुछ कुछ फ्रेश वाटर ब्रैकिश होते हैं। नाउ इवन इन द वार्मर एरियाज ये 2 जगह ही हो सकते हैं, इन द सरफेस वाटर्स एज वेल एज इन द डेप्थ, जहां पे सनलाइट पेनिट्रेशन इज वेरी लेस। पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए एंड डी।
Besides that, a very important pigment which is phycoerythrin. ये उनका dominant accessory pigment होता है and because of this they are red in color. और इसी pigment के वजह से this pigment enables photosynthesis at great ocean depth. Okay? Cell structure. Cell wall is made up of cellulose, the inner cell wall. Okay? यहाँ पे आप लिख लीजिए the inner. And the outer cell wall is made up of pectin and यहाँ पे इन दोनों के लिए लिख लीजिए outer plus polysulfate esters. Stored food is Floridian starch और ये Floridian starch का structure is like amylopectin या and glycogen. Very important is flagella absent. कोई सा भी स्टेज में यहाँ flagella हमें देखने को ही नहीं मिलता, ना तो किसी स्पोर्स में, ना गैमेट्स में और ना ही किसी रेड एल्गी में. क्लियर बच्चों? बॉडी फॉर्म्स मोस्टली मल्टीसेल्यूलर एंड थैलस लाइक होता है. ओके. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका ये है कि दे आर सोर्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड. Agar is one of them, extracted from Gracilaria and Gelidinium. Carrageenan is another one. And Porphyra is edible. Okay, it is rich in vitamins. Key members inka hai Porphyra, which is edible, Polysiphonia, which is branched and has a complex life cycle, Gracilaria and Gelidinium, source of agar. Now their reproduction. वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन होता है एंड एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, नो फ्लैजेलेटेड स्पोर्स. ओके. सेक्सुअल में खाली oogamous हमें देखने को मिलता है. फीमेल फिक्स्ड एंड मेल नॉन फ्लैजेलेटेड, यानी ये पैसिवली स्विम करके आते हैं, पानी में फ्लोट करके आते हैं. सॉरी, नॉट स्विम, फ्लोट करके आते हैं. इंपॉर्टेंट ऑर्गेन examples: Porphyra, Polysiphonia, Gracilaria and Gelidinium. And this is your NIT recall points. ले लिया आपने स्क्रीनशॉट. अब हम डायग्राम्स को देखते हैं. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, ये डायग्राम्स तो आपके बुक का ही है. ओके. सो लेट्स लुक इनटू देम. ये है वॉल्वॉक्स. ये अंदर डॉटर कॉलोनीज है. इट इज अ हॉलो बॉल. ये सॉलिड बॉल नहीं होता क्योंकि बीच में खाली है. सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज अ हॉलो स्फेयर. ओके. ये सारे के सारे जो ग्रीन दिख रहे हैं ना, दीज आर द वॉल्वॉक्स. और ये जो लाइन्स है, दे आर द जेलाटिनस लाइन्स, जेलाटिनस शीट. ये कॉलोनियल फॉर्म है. ये यूलोट्रिक्स है. यूलोट्रिक्स के सेल स्क्वायरिश टाइप होते हैं और इनके प्लास्टिड्स जो है, they are also similar in size. Now let us come to brown algae. So this is laminaria. Laminaria में ये hold fast है, stipe and frond. यहाँ पे हमें mid rib या air bladders देखने को नहीं मिलता. नेक्स्ट वाले में आते हैं which is fucus. यहाँ पे हमें तीनों ही देखने को मिलता है. hold fast, this is the stipe. Okay. You know what I feel, अगर आपको लेबल करना है तो प्लीज लेबल एवरीथिंग. ये हाफ हाफ लेबल करना इज rather confusing. और ये पूरा है द फ्रॉन्ट. वी कैन सी द मिड रिब हियर एंड एयर ब्लैडर्स. और इनके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यू डाइकोटोमस टाइप ग्रूव आपको देखने को मिलेगा ऑन द एपिकल साइड. क्लियर? डिक्टियोटा, यहाँ पे भी स्टाइप है. दिस इज द होल्ड फास्ट and they show beautiful dichotomous branching. ये इसका characteristic feature है. If you see everywhere, right? Now red algae. ये है Porphyra. It is a simple thalloid. और ये पॉलीसाइफोनिया है. पॉली मतलब मल्टी, साइफोनिया यानी पतले पतले ब्रांचेस. दिस इज द मेन एक्सिस एंड दीज आर द ब्रांचेस. क्लियर विथ ऑल द डायग्राम्स? नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द कंपैरेटिव टेबल ऑफ द 3 ग्रुप्स ऑफ algae: Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae.
यहाँ पे इनके कॉमन नेम है द मेजर पिगमेंट्स. सो लेट्स सी. मेजर पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल. फिर बी है क्लोरोफाइसी में सी एंड फ्यूकोजैंथिन फॉर फियोफाइसी. यहाँ पे आप कैरोटेनॉइड भी लिख दीजिए. ओके. एंड फॉर rhodophysi it is D and phycoerythrin. Stored food starch for Phaeophysi it is mannitol and laminarin. Rhodophysi के लिए Floridian starch. Now for three of them the cell wall, the inner layer is cellulosic. तभी तो plant kingdom में है. Outer layer keeps on changing. यहाँ पे cellulosic है. Outer layer is made up of pectin. यहाँ पे algin, यहाँ पे pectin and polysulfate esters. Okay. फ्लैजेला नंबर यहाँ पे 2 या 8 इक्वल एपिकल. यहाँ पे ओनली 2 अनइक्वल लैटरल और यहाँ पे एब्सेंट. और फिर इनके हैबिटेट्स फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, सॉल्टिश वाटर. यहाँ पे फ्रेश वाटर रेयर है, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर. फिर रोडोफाइसिस फ्रेश वाटर सम, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर मोस्ट एंड वार्मर रीजन या वार्मर वाटर्स. ओके. So students, that was all about algae. I hope आपको ये समझ में आया और ये वीडियो अब तक कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक. ओके. अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ व्हाट ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट्स का हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अ जनरल अकाउंट. और जनरल अकाउंट मैं आपको मेरे नोट्स से ही पढ़ाती हूँ. ओके. सो लेट अस सी. नाउ ब्रायोफाइट्स आर सेड टू बी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. व्हाई? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. यानी इन्हें दोनों की ही जरूरत है. विदाउट वाटर ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ओके. एक जनरेशन सरवाइव तो कर लेगा बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. This group includes liverworts, hornworts and mosses. इनका habitat कैसा होता है? Damp, humid and shaded places. Okay. Plant body. Now plant body is more differentiated than algae. अब इनका plant body जो है it can either be prostrate, thallus-like, dorsiventral. यानी ये अगर सॉइल है तो उसके ऊपर चपटा सा एंड अटैच टू इट विथ राइजोइड्स. और इट कैन बी इरेक्ट टाइनी लीफ लाइक विथ, या तो फिर वो इरेक्ट टाइनी विथ लीफ लाइक अपेंडेजेस ऑन अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. यानी मैक्सिमम इनका जो हाइट होता है वो 5 to 6 सेंटीमीटर होता है. यूं छोटा छोटा सा प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा. ओके. 5 to 6 सेंटीमीटर मैक्स. अब ये प्रोस्ट्रेट हो या इरेक्ट हो, दे आर अटैच्ड टू सॉइल बाय द हेल्प ऑफ राइजोइड्स. नाउ व्हाट आर राइजोइड्स? दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स. नाउ बिकॉज ब्रायोफाइट्स में वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं होता, इसीलिए इनका ना तो ट्रू लीफ होता है, ना ट्रू स्टेम होता है और ना ही ट्रू रूट्स होता है. वाई? एक तो इंटरनली एनाटोमिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेम, रूट या लीफ. दूसरा है कि इनमें कोई वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं है, सो दे आर नॉट ट्रू स्टेम और लीफ. ओके. Now coming back to rhizoids. Rhizoids can again be of two types: unicellular unbranched, multicellular branched. Unicellular unbranched हमें यहाँ देखने को मिलता है, multicellular branched हमें यहाँ. Clear? Very easy way of remembering things. Vascular tissue इनमें absent होता है and the plant body is haploid. Dominant phase is gametophyte. Okay? मैं कहना भूल गई, I don't know मैं कही हूँ कि नहीं, algae में भी the dominant phase is haploid. Okay? And that is the gametophytic phase. स्पोरोफाइटिक फेज उनमें खाली जाइगोट से ही होता है और ऐसे लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक बोला जाता है, जहां पे ऑल्टरनेशन तो है बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बट द डिप्लॉइड स्टेज इज वेरी स्मॉल. नाउ इनटू द रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स.
अब वापस ब्रायोफाइट्स में घूम के आते हैं एंड लेट अस सी देयर रिप्रोडक्शन. सो देयर रिप्रोडक्शन इट कैन बी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल. वेजिटेटिव है तो फ्रेगमेंटेशन का हो सकता है या बर्डिंग. बर्डिंग हुआ तो लेटरल बर्ड्स होगा. Reproduction asexual by special structures called gamma. Now, what are gammae? They are green multicellular structure. Green multicellular stalked, यानी इनके नीचे स्टॉक होता है, एंड फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक, और व्हेन दे फॉल on the ground they are free living, तभी तो survive कर पाएंगे, right? Now these gamete are born on the special cup like structures which is called gamma cups. ठीक है, ये सूख जाते हैं, this is released, they fall on the ground and they give rise to a new plant. Okay, फिर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ही होना है. यहां पे हमें सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलता है विच आर मल्टीसेल्यूलर. इन एल्गी देवर इधर यूनिसेल्यूलर, कहीं कहीं पे हमें मल्टीसेल्यूलर देखने को मिलता है. मल्टीसेल्यूलर सच एज इन कारा, वेयर वी कैन सी दिस काइंड ऑफ appendages surrounding the gamete. Okay, पर यहां all sex organs are multicellular. The female sex organ is called archegonia and the male antheridium. Archegonia कैसा होता है? It is flask shaped. हो गया flask shaped. ये इनके बॉर्डर के सेल्स हो गए. These cells are sterile cell. This is the neck of the archegonia. यहां पे ugonium या egg cell है. इनके ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए एक वेंटर सेल रहता है. ओके, और नेक में नेक कनाल सेल्स. एंड दिस इज द माउथ या द ओपनिंग ऑफ द नेक. मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? Now male sex organ is also stalked. ये मतलब इसका स्टॉक होता है. दिस इज अ स्टेराइल जैकेट, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और इसके अंदर जो सेल्स है दे प्रोड्यूस द गैमेट्स. क्लियर? नाउ दीज सेल्स प्रोड्यूस एंथेरोजोइड्स. एंथेरोजोइड्स आर बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स. यूं लंबा सा होता है स्ट्रक्चर एंड बाइफ्लैजेलेटेड, इधर ऑन द सेम साइड और यूं. ठीक है, they swim in water film up to the archegonia. So यहाँ से रिलीज होने के बाद when they have to swim they need water. Okay, इसीलिए ये damp and cool places में रहते हैं जहाँ पे a film of water is available for them to swim. अब आते हैं क्या? गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जाइगोट हो जाता है. इससे पहले का अब तक हम हैप्लॉइड देख रहे थे. जाइगोट से ट्वाइस से द डिप्लॉइड देखते हैं. नाउ जाइगोट जो होता है इनमें इट इमीडिएटली डज नॉट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. ये माइटोटिक डिविजन्स करते हैं. इट अंडरगोस डिविजन्स विच आर माइटोटिक एंड दे गिव राइज टू अ स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट जो ब्रायोफाइट का होता है दैट इज क्वाइट एलैबोरेट व्हेन यू कंपेयर इट विद दैट ऑफ एन एल्गी. एल्गी में खाली जाइगोट ही था, उसके आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं था. इनका स्पोरोफाइट होता कैसे है? स्ट्रक्चरली इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कैप्सूल, अ सीटा जो कि स्टॉक है, एंड देन द फूट. फूट मतलब बिल्कुल नीचे. फूट, सीटा, कैप्सूल. ठीक है, और कैप्सूल के अंदर जो सेल्स होते हैं दे अंडरगो मियोसिस टू गिव राइज टू स्पोर्स. और ये जो स्पोर्स है दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर. अब स्पोर्स के डिस्पर्सल के लिए पानी की जरूरत नहीं होती. ओके, देन द स्पोर्स फॉल ऑन ग्राउंड
and they again give rise to a new haploid gametophytic plant. क्लियर है? तो दिख चुका है हैप्लॉइड प्लांट, डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, फिर से स्पोर्स विच आर हैप्लॉइड एंड देन अगेन अ हैप्लॉइड प्लांट. सो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच ये ऑल्टरनेट करता है. नाउ इनका जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट, वो गैमेटोफाइट यानी द पेरेंट प्लांट के साथ लगा हुआ होता है. ओके, व्हाई? बिकॉज दे ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम इट. दैट इज व्हाई स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट, thus remains attached. ओके, ठीक है, वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है. अब ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आते हैं. अब ब्रायोफाइट्स के इंपॉर्टेंस पे आते हैं. ना इंपॉर्टेंस इनका एक तरफ इकोलॉजिकल, दूसरी तरफ इकोनॉमिकल. इकोलॉजिकल में दे हेल्प इन प्लांट सक्सेशन. प्लांट सक्सेशन मतलब क्या? व्हेन देयर इज बेयर रॉक्स, ओके, प्लांट्स कैनॉट ग्रो. तो सबसे पहले ये मॉसेस या ब्रायोफाइट्स एंड लाइकन्स B+L इन पे ग्रो करते हैं. As they grow, they slowly decompose these rocks in soil. जैसे ही सॉइल बन गया, बाकी के प्लांट्स आके यहां ग्रो कर सकते हैं. क्लियर है? ये हो गया प्लांट सक्सेशन. दे प्रिवेंट सॉइल इरोशन. नाउ ब्रायोफाइट्स में देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ विच मॉसेस का यहां कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. हाउ सो? बिकॉज वो जिस सॉइल पे ग्रो करते थे ऑलमोस्ट फॉर्म लाइक अ कारपेट, अ मैट. तो फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर को दे प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द सॉइल. एज अ रिजल्ट द सॉइल डज नॉट गेट वॉश्ड आउट. क्लियर है? एंड दे आर फूड फॉर मेनी एनिमल्स. अब आते हैं इकोनॉमिकल पे. नाउ स्फैग्नम. इफ द स्फैग्नम इज डेड एंड बेरीड, वो पीट बन चुका है. ओके, अब पीट क्या है? पीट इज द नेम गिवन टू डेड एंड बेरीड कंप्रेस्ड प्लांट मटेरियल, जो अब निकाल के इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. ओके, इफ इट इज ड्राइड, उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई होता है. वाटर रिटेंशन हाई. That is why they are used for packaging live plant saplings for water holding capacity. ठीक है, during shipping and all. Now they are actually divided into 3 groups: liverworts, hepatocopsida, hornworts, anthoceropsida, mosses, bryopsida. Now 3 groups तो होते हैं. This group is very similar to liverworts. इनका एक ही एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एंथोसेरोस. उनका स्ट्रक्चर काफी हद तक और बिहेवियर भी लिवरवर्ट्स से मिलता है. आपके सिलेबस में जो डिटेल्स में दिया हुआ है दैट इज लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. तो अब हम इन 2 ग्रुप्स को इन डिटेल्स पढ़ते हैं. ओके, सबसे पहले लिवरवर्ट्स. इनका हैबिटेट तो वही डैम्प कूल प्लेसेस होते हैं. इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है? मोस्ट ऑफ देम फ्लैट या यू कैन से डॉर्सोवेंट्रल, थैलॉइड. ओके, some are tiny, erect, leafy structure. Now अगर ये फ्लैट डॉर्सिवेंट्रल थैलॉइड लाइक होते हैं तो कैसा होता है? वेरी क्लोजली अटैच्ड टू द सॉइल. ओके, ये सॉइल है और उस पे यूं चपटा सा होता है. दिस इज द डॉर्सल साइड, दिस इज द वेंट्रल साइड. और टाइनी लीफ लाइक होगा तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में टाइनी लीव्स जो है इट विल बी अरेंज्ड इन 2 rows. ओके, ये भी अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजॉइड्स. इनका राइजॉइड कैसा होता है? U square. U square means what?
unicellular unbranched. Clear? रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है और एसेक्सुअल में हमें गेमा देखने को मिलता है। क्लियर? गेमे, मां हो गया तो सिंगुलर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अभी हम डिटेल्स में देखेंगे, उससे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए। मार्केंशिया, ये थैलॉइड है और डिस्क है, सॉरी ये डायोशियस है और थैलस है। रिक्शिया, ये मोनोएशियस है और थैलॉइड स्ट्रक्चर है। पोरेला, ये लीफी है। ओके, नाउ लेट अस लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया, जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, और फिर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम वहां से समझेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज द डायग्राम फ्रॉम योर बुक। ये मार्केंशिया है। तो पहले हम इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल थैलॉइड है, दे हैव अ मिड रिब। ओके, मिड रिब इनका काफी प्रोमिनेंट होता है और बिल्कुल एपेक्स जो होता है वहां पे एक डाइकोटोमस नॉच जैसा हमें देखने को मिलता है। ओके, एंड दिस इज द एपिकल नॉच। ये यूनिसेल्युलर राइजोइड्स हो गए, ये गेमा कप्स है। ओके, एंड गेमा कप्स के अंदर गेमा रहता है। नाउ द इंटरेस्टिंग फीचर इज द सेक्स ऑर्गन्स। यहां पे सेक्स ऑर्गन्स है तो आर्किगोनियम एंड एंथेरिडियम, बट दे आर बोर्न ऑन दिस स्टॉक्ड स्ट्रक्चर। स्टॉक के ऊपर होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आर्किगोनियोफोर इन फीमेल्स एंड एंथेरिडियोफोर इन मेल्स। फोर का मतलब यूजुअली मीन्स सम अ स्टिक लाइक या फेलस लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो आर्किगोनियोफोर को देखते हैं। मैं इसे एनलार्ज कर देती हूँ। अटैच्ड टू द थैलस फ्रॉम द अंडर साइड, ये इनका स्टॉक है। ओके, एंड दीज आर कॉल्ड द रेज। और बी रेज के नीचे जो है वहां पे आर्किगोनियम होता है। तो आर्किगोनियोफोर में देयर विल बी मोर देन वन आर्किगोनियम। क्लियर है? अब आते हैं एंथेरिडियोफोर में। दिस एंटायर थिंग इज रेफर्ड टू द एज एंथेरिडियोफोर। दिस इज द स्टॉक। विद दिस इट इज अटैच्ड टू द थैलस, और वो भी अंडर साइड से अटैच्ड रहता है। एंड दिस इज डिस्क लाइक lobed structure. Lobes can vary anywhere from 9 to 11. Okay, और बीच में यहां एंथेरिडियम होता है। if you see here you can see स्टॉक से ऐसा लगा हुआ एंथेरिडियम। ओके, और यहां पे रेज के नीचे नीचे आर्किगोनिया। क्लियर है? यहां से गैमेट्स रिलीज होते हैं विद in water, they swim up to the archegonium and they fuse with the egg cell there to give rise to zygote. फिर इन पे zygote gives rise to the sporophyte. अब sporophyte अलग नहीं होता, यहीं पे डेवलप करते हैं, and it has the structure of a capsule, सीटा, और बिल्कुल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को फूट कहा जाता है। ऑल क्लियर अबाउट लिवर वर्ड्स? सब कुछ समझा दी हूं। ओके, अब हम नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं, विच इज मॉसेस। नाउ मॉसेस, अब मॉसेस का हैबिटेट तो वही कूल एंड डैम्प प्लेस होता है। दे आर लीफी प्लांट्स। ओके,
तो लीफी प्लांट्स, लेकिन ये बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे आर नॉट लीफी स्ट्रक्चर. व्हेन अ स्पोर फॉल्स इनटू द ग्राउंड, प्राइमरी या फर्स्ट जो प्लांट को दे गिव राइज टू, इट इज फिलामेंटस इन नेचर एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटोनिमा. तो इनका प्लांट तो होता है लीफी प्लांट, बट इट हैज टू स्टेजेस. द प्राइमरी स्टेज, या यू कैन से द फर्स्ट स्टेज, okay, that comes out of spore. Protonema, flat on the ground. इसको आप सॉइल समझिए. It is attached with multicellular and branched rhizoids. ठीक है. This filamentous form gives rise to secondary protonema. ये प्राइमरी हो गया, मतलब द फर्स्ट फॉर्म, उससे ये सेकेंडरी फॉर्म होता है. यहां पे लैटरल बड्स कम आउट, और लैटरल बड से द लीफी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ग्रोज अप. ठीक है, समझ में आया? So their second stage, secondary stage, is the actual leafy plant. It comes out of primary protonema. From its secondary protonema. As a lateral bud. मैं लिख देती हूं, दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी. क्लियर है? अब आते हैं इनके अरेंजमेंट ऑफ लीव्स पे. Their leaves are spirally arranged. जब आप डायग्राम देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. On the stem like structure. क्लियर? अब क्या बचता है? रिप्रोडक्शन. यू नो स्टूडेंट्स, एक जनरल अकाउंट को पहले पढ़ लेना बिकम्स वेरी इजी एंड हैंडी. तो फिर बहुत सारे से कॉमन पॉइंट्स को हम पहले कवर कर ले सकते हैं, राइट? रिप्रोडक्टिव फीचर्स मैं लिख देती हूं. वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, कुछ स्पीशीज गेमा भी दिखाते हैं, एंड लैटरल बड. लैटरल बड अभी हमने जो देखा ना, this lateral bud comes out and then it gives rise to a plant. तो इसी को मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी माना जाता है. क्लियर? नाउ देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है. यहां पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दे आर एट द टिप ऑफ branches, sorry, tip of stem usually. okay, एक स्टार मार्क देके रखती हूँ डायग्राम में, मैं आपको समझाऊंगी कि ये स्टार मार्क क्यों देके रखी हूँ. फिर आते हैं इनके स्पोरोफाइट पे. स्पोरोफाइट इज वेरी वेल डिफरेंशिएटेड इनटू अ कैप्सूल, सीटा एंड द फुट. ये फुट हो गया, ये सीटा हो गया, ये कैप्सूल हो गया. क्लियर है? कैप्सूल के अंदर कौन सा वाला डिवीजन होना है? मियोसिस. ओके. स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर, दे फॉल इनटू द ग्राउंड. फिर से किसको राइज देंगे? दे विल गिव राइज टू प्राइमरी प्रोटोनिमा. प्राइमरी से सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लैटरल बड, लैटरल बड से लीफी प्लांट.
डन। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर डायग्राम में समझाऊंगी। पॉलीट्राइकम फ्यूनेरिया स्फैग्नम। क्लियर। अब हम फ्यूनेरिया और स्फैग्नम के जो इमेजेस है आपके सिलेबस में उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द इमेज ऑफ फ्यूनेरिया और ये है स्फैग्नम। ओके, तो ये एक छोटा सा लीफी पार्ट, दिस इज द गैमेटोफाइटिक फेज, हैप्लॉइड है। These are the rhizoids, this is the main axis या stem like structure and can you see leaves जो है ये spirally arranged है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन था, जाइगोट बना, वो पार्ट हो चुका है, अब यहाँ पे स्पोरोफाइट है। सो दिस इमेज शोज बोथ द स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट। बिल्कुल नीचे यहाँ पे होगा इसका फूट, दिस इज द सीटा और ये कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे, दे विल अंडरगो मियोसिस और मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, राइट। अब आते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ स्फैग्नम। ये जो है दिस इज द मेन एक्सिस या मेन स्टेम या एक्सिस। लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड, ये सारे के सारे ब्रांचेस हैं। बिल्कुल आप ऊपर आ जाइए, दिस इज एन एंथेरिडियल ब्रांच, तो ये इनका टिप पे है। ओके, लेकिन जो आर्किगोनियल ब्रांच होता है वहां इट कम्स आउट एज अ लैटरल ब्रांच। आर्किगोनियल ब्रांच लैटरल या एक्सिलरी ब्रांच होता है। ओके, इसीलिए मैं वहां पे एक स्टार मार्क देके रखी थी, दिस इज द डिफरेंस। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, अब एल्गी और ब्रायोफाइट्स का एक कंपैरिजन कर ले। पहले हम इनके सिमिलैरिटीज को देखते हैं। ओके, यहां पे इनके सिमिलैरिटीज, दोनों का ही प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, इसका भी वही है। प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड, थैलॉइड। इनका डिफरेंशिएशन ज्यादा होता है, राइट, डिफरेंशिएटेड मोर। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। नो फ्लावर, यहां पे भी नो फ्लावर। ओके, अब हम इनके डिफरेंसेस को देखते हैं। दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, दे आर टेरेस्ट्रियल। स्पोरोफाइट जो होता है इनका, it is reduced to zygote. Sporophyte is elaborate. Okay, बच्चों मैं एक पॉइंट बोलना भूल गई कि मॉसेस का जो स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म है दैट इज मोर एलैबोरेट देन दैट ऑफ लिवरवर्ट्स। ओके, मैं यहां पे लिख देती हूं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। मॉसेस more elaborate than liverworts. Okay, इनका जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज हैप्लॉन्टिक और इनका हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मीन्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस बराबर, दोनों ही दिखता है, दे आर नॉट इनकॉन्स्पिक्युअस, नन ऑफ द फेजेस आर इनकॉन्स्पिक्युअस। क्लियर। फिर यहां पे हमें राइजॉइड्स देखने को नहीं मिलता, यहां पे राइजॉइड्स होते हैं। क्लियर है। यहां पे यूनिसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन, यहां पे तो
मल्टी सेल्यूलर भी होता है, यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर एंड वेल डेवलप्ड। Clear? So these were some of the differences between algae and bryophytes. So students, with this आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, आई होप ये आपको समझ में आया। If so, please don't forget to give a like. If you have any comment, please comment it in the comment section and don't forget to subscribe to my channel. इसके बाद जो दो ग्रुप्स रह जाते हैं, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, उसको हम बहुत डिटेल्स में समझेंगे और उसके लिए एक अलग वीडियो होगा। Till then, go through the video, read your books, and I'll see you again with the next video. Till then, take care. Bye.